Listen carefully. Today you are doing about Jacobin Club. ठीक है. First of all आपने बताया कि Jacobins they stormed Tuileries Palace. They stormed which palace? Tuileries Palace. You have to learn the name of the palace. Tuileries Palace. They stormed Tuileries Palace on 10th August 1792. They massacred king's guards and imprisoned the royal family. Then these Jacobins demanded for elections. Now elections were held in France. A newly elected assembly that was known as convention, means Parliament of France. Convention. ठीक. Next, on 21st September 1792, Jacobins abolished monarchical form of government and they declared France a republic. Republican form of government is a government in which head of the country is elected by people though an indirect manner. For example, I have told you, India is a republic and head of the country is president, and president is elected by people in an indirect way, same as in France. Robespierre declared France a republic. Newly elected assembly was known as convention. ठीक है. तो नेक्स्ट, अब क्या हुआ फ्रांस में? रॉबस्पियर ब्रोट इक्वालिटी. He brought equality. He gave right to vote to all male who were at the age of 21. As you have read that National Assembly gave right to vote to those who were property owners, to all the male who were at the age of 25 or above, and they were property owners. But Robespierre, he gave right to vote to all male who were at the age of 21. चाहे उनके पास प्रॉपर्टी थी चाहे नहीं, इसने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया. बट ही डिडंट गिव राइट टू वोट टू वुमेन. वुमेन के राइट टू वोट की फेवर में रोबस्पियर नहीं था. ही abolished slave trade. In 1794, Robespierre ने, write down the year also, in 1794, Robespierre abolished slave trade in France. 1794 में slave trade was abolished. Slave trade जो था that was abolished. Slave trade was abolished. In 1794, Robespierre abolished the slave trade. तो ये काम अच्छा ही कर रहा है ना, इक्वालिटी लेके आया, राइट टू वोट सब मेल को दिया, चाहे वुमेन को नहीं दिया बट सब मेल को दिया, वेदर दे वर प्रॉपर्टी ओनर्स और नॉट. एंड ही आल्सो अबॉलिश्ड स्लेव ट्रेड. इसने स्लेव ट्रेड भी खत्म किया. ही इंट्रोड्यूस्ड इक्वल काइंड ऑफ ब्रेड फॉर ऑल. एज आई हैव टोल्ड यू, द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस वाज ब्रेड, एंड रॉबस्पियर इंट्रोड्यूस्ड इक्वल काइंड ऑफ ब्रेड फॉर ऑल. पहले क्या होता था? गुड क्वालिटी ब्रेड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट and poor quality bread for third estate people. But Robespierre introduced equal kind of bread for all. क्योंकि quality में believe करता था तो equal kind of bread भी लेके आया. ठीक है, तो ये काम उसने अच्छे किए. But if anyone spoke anything about against the Republican form of government, then Robespierre gave strict punishments to them. Robespierre gave strict punishments to those who spoke against the Republican form of government. अगर कोई भी रिपब्लिकन के अगेंस्ट बोलता तो रॉबस्पियर gave them strict punishments. उनको ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देता था. अब आप हेडिंग बनाओगे रेन ऑफ टेरर. आतंकवाद का पीरियड. ईयर लिखोगे 1793 to 94. अब इसमें आप बताओगे इन फ्रेंच हिस्ट्री
Period from 1793 to 94 is known as Reign of Terror. 1793 to 94 का पीरियड जो है ना फ्रांस की स्कीमों से रेन ऑफ टेरर कहते हैं. Robespierre gave strict punishments to those who were not in the favor of Republican form of government. Robespierre उन लोगों को punishments देता था who were not in the favor of Republican form of government. He sent them to Guillotin. कहाँ भेजता था? Guillotin. He sent them to Guillotin. Guillotin was a device. He sent them to Guillotin. ये डॉक्टर गुलेटन के नाम पे एक डिवाइस था, डॉक्टर गुलेटन. He sent them to Guillotin. Guillotin was a device by which person was beheaded, जिसका सर धड़ से अलग कर देते थे. Robespierre sent those who spoke against the Republican form of government to Guillotin. It was a device. Guillotin था क्या? डिवाइस. किसके नाम पे पड़ा था ये? डॉक्टर गुलेटन होता था फ्रांस में, उसके नाम से ये पड़ा. तो आपने बताना इट वाज अ डिवाइस बाय विच पर्सन वाज beheaded. BE फिर headed. By which person was beheaded. Guillotine was a device by which person was beheaded. सर धड़ से अलग कर देते थे. Robespierre sent so many people to Guillotin. बहुत लोगों को फ्रांस में गुलेटन भेजा, तभी इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया ना. He sent so many people in France to Guillotin. Olympe de Gouges, but you can see spelling from the book. Olympe de Gouges. Olympe de Gouges. एक मिनट. Olympe de Gouges was one of the women who was sent to Guillotin as she started his political club. ओलंपे डी गॉर्जेस एक वुमेन थी जिसे रॉबस्पियर ने गुलेटन भेजा. अब इसका कसूर क्या था? बिकॉज इसने अपना एक पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया था. ओलंपे डी गॉर्जेस वाज वन ऑफ द वुमेन हु सेंट टू गुलेटन as he started her political club. And Robespierre, he was not in the favor of the rights of women. Robespierre women के rights की favor में नहीं था. So he sent Olympe de Gouges to Guillotin. क्योंकि वो वुमेन को राइट्स देना ही नहीं चाहता था, तो इसने तो अपना क्लब स्टार्ट कर लिया था. Robespierre sent her to Guillotin. Court sent Robespierre to Guillotin. Court ordered and sent Robespierre to Guillotin. कोर्ट ने किसे गुलेटन भेज दिया? Robespierre. In 1794, court sent Robespierre to Guillotin in 1794. Then, with his death, reign of terror in France came to an end. Court sent Robespierre to Guillotin in 1794. Then, with his death, reign of terror in France came to an end. France में आतंकवाद का पीरियड खत्म हो गया after the death of Robespierre. Who was Robespierre? Leader of Jacobin Club. Which type of government he brought in France?
Republican form of government. Newly elected assembly was known as convention. Robespierre, what type of punishment Robespierre gave to the people who spoke against Republican form of government? He sent them to guillotine. Next, रॉबस्पियर ने अच्छे काम भी किए, बुरे भी किए. अच्छे कौन से वाले काम किए? He brought equality. He abolished slave trade in 1794. Slave trade को भी खत्म किया, ये अच्छा काम किया. And he abolished slave trade. He brought equality. He introduced equal kinds of bread for all. But बुरे भी किए. Gave punishments to those who spoke against Republican form of government and sent them to guillotine. His period in French history came to be known as Reign of Terror, आतंकवाद का period. He sent so many people to guillotine. He also sent Lope de Gorges, one of the women who started her political club, to guillotine. Robespierre was also sent by court to guillotine. And with his death in France, Reign of Terror came to an end. फ्रांस में रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया रॉबस्पियर की डेथ के साथ. अब एक मिनट स्टूडेंट्स, अब हमने करना है डायरेक्टरी रूल. 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट फ्रॉम दिस लेसन. वन इज डायरेक्टरी रूल एंड अदर इज Napoleon Bonaparte, and then we have to write 2 topics, role of women and then slave trade. slave trade हमने करना है, ठीक है. तो स्लेव ट्रेड कुछ तो आपको नॉलेज चाहिए होगी कि किसने, इट मीन्स फ्रांस में क्या चल रहा था, स्लेव ट्रेड. हु अबॉलिश्ड? रॉबस्पियर. री इंट्रोड्यूस जाके किसने करना है? नेपोलियन ने 1804. मैं कह रही हूँ आफ्टर 10 ईयर स्लेव ट्रेड फ्रांस में स्टार्ट हुआ. अगर आप यहाँ पे ईयर गलत लिखोगे, 1794 नहीं लिखते, कुछ और लिख देते हो, तो 10 जब आप प्लस करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाना है. 1804 में नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेव ट्रेड. नेपोलियन ने दोबारा री इंट्रोड्यूस किया था स्लेव ट्रेड, विच वाज अबॉलिश्ड बाय रॉबस्पियर. रॉबस्पियर अबॉलिश स्लेव ट्रेड इन, यू नो इट वेल, 1794. अब ये कभी नहीं भूलना. एंड हु री इंट्रोड्यूस द स्लेव ट्रेड आफ्टर 10 ईयर? नेपोलियन. इट मीन्स कौन से ईयर में स्लेव ट्रेड दोबारा स्टार्ट हुआ? 1804. तो ये आपको कभी भी अब नहीं भूलना. और स्लेव ट्रेड वाज टोटली अबॉलिश्ड in France in 1848. 1848 में फ्रांस में स्लेव ट्रेड जो था वो टोटली अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है. तो ये हम बाद में करेंगे. अब आ गया आपका जैकोबिन क्लब, ओ सॉरी डायरेक्टरी रूल. यू हैव डन जैकोबिन क्लब. नेक्स्ट इज नोट डाउन, बट आज मैं नहीं करवा रही, मैं एक बार पिछला सारा रिवाइज करवा देती हूँ. नोट डाउन डायरेक्टरी रूल. इसमें भी मैंने बताया हुआ आपको, पावर जो थी वो डिवाइड हो चुकी थी. दैट गॉट डिवाइडेड 5 बिटवीन द हैंड्स ऑफ 5 डायरेक्टर्स. 5 डायरेक्टर्स आपस में लड़ते रहते थे ड्यू टू पावर्स. तो देयर रूल ब्रॉट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस. People got dissatisfied with this rule. No, they were in the search of strong leader. They saw all the qualities in Napoleon, and उन्होंने सारी क्वालिटीज किसमें देखी? नेपोलियन में. एंड इन 1804 नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस. 1804 में नेपोलियन फ्रांस का रूलर बन गया. नेपोलियन ने आके 2 काम अच्छे नहीं किए. डायरेक्टरी रूल में कहीं ना कहीं पावर्स वर डिवाइडेड, बट नेपोलियन दोबारा लेके आया एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की. नेपोलियन ने स्लेव ट्रेड भी इंट्रोड्यूस किया, बट ही वाज लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस बिकॉज ऑफ हिज सिविल कोड. उसने सिविल कोड इशू किए थे, दैट्स व्हाई ही वाज लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस. अभी आज नहीं करवा रही डायरेक्टरी रूल एंड नेपोलियन. सिर्फ हमारा 2 पीरियड्स का वर्क रह गया ये लेसन कंप्लीट होने में, ठीक है. तो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल recap, quick recap of this chapter. You have to learn the date and year of the French Revolution, 14 July 1789. Name of the ruler, Louis XVI. ठीक. फिर इकोनॉमिक कंडीशन, सारा पैसे को लेके बताना है. देन सोशल कंडीशन, सोसाइटी को लेके बताना है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, ठीक है. फिर आपको टैक्सेस के बारे में बताना है इसमें, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस.
Next is role of philosophers. Here you have to learn the name of the philosophers. Rousseau, John Locke, Voltaire. ठीक है, इनके नाम लर्न करने हैं. मोंटेस्क्यू, ये सब इनकी बुक्स और इनके नाम लर्न करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट, रोल ऑफ फिलोसफर्स के बाद आ जाती है मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल. अब आपको मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल लर्न करनी है. कहाँ 5 मई को स्टार्ट हुई. पहले मीटिंग उसके एंसेस्टर्स ने बुलाई थी 1614 में. 175 ईयर्स बाद लुइस ने ये मीटिंग बुलाई. मीन्स बीच में किसी ने नहीं ये मीटिंग बुलाई, दादा परदादा ने बुलाई थी. आफ्टर 175 ईयर्स दिस मीटिंग वाज कॉल्ड बाय लुइस 16, क्योंकि वो कोर्ट एक्सेस लगाना चाहता था. अब ये मीटिंग बुलाई. इस मीटिंग में क्या क्या डिस्क्रिमिनेट हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट कहाँ बैठी, थर्ड एस्टेट कहाँ खड़ी रही, कितनी लेटर्स ऑफ ग्रीवेंसेस के साथ आए. ठीक है. वोटिंग राइट किसकी फेवर में चला गया. वाई पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग, कहाँ पे मिले, टेनिस कोर्ट ग्राउंड में. क्या डिसीजन लिया टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और क्या डिसीजन लिया टू गिव लिमिटेशंस टू द पावर्स ऑफ लुइस 16. कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 2 years. In which year France became constitutional monarchy, 1791. How and why and when. Why, क्यों बनी, ना बनता, वो तो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क था. Why he became constitutional monarch, ऐसा क्यों हुआ. वायलेंस इन पैरिसिटी, वायलेंस इन कंट्री साइड. लुइस कंट्रोल नहीं कर पाया, हैंडल नहीं कर पाया. That's why he had to agree with the constitution made by National Assembly. तो आपने इस वे से सारा बताना. ठीक है. तो नेक्स्ट, नेशनल असेंबली के जितने पॉइंट्स आप इसके लीडर्स करोगे, इसका कॉन्स्टिट्यूशन करोगे, फायर डिक्री करोगे. फायर डिक्री में आप बताओगे कि क्या क्या 4 अगस्त को इन्होंने क्या क्या डिक्लेयर किया. टिथ को अबॉलिश किया. ठीक है. चर्च की पावर्स को कम कर दिया. चर्च की जो प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, उस पर इन्होंने ऑफिशियल बिल्डिंग्स बना दी. ठीक है. ये सब कुछ इन्होंने किया. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताओगे, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था, कैसे लोगों को बांटा, एक्टिव एंड पैसिव में बांट दिया. ये सब आप नेशनल असेंबली के लिए लाइन्स फ्रेम कर लोगे. डिपेंड अपॉन योर विश, आप कैसे फ्रेम करना चाहते हो. मैंने बिल्कुल नहीं बोला क्रैम करो या सीरियल ऑर्डर में लिखो, आपकी आगे पीछे हो सकती हैं लाइन्स. ठीक है. एक रीडिंग लो, जैसे लिखना है लिखो. फिर आपको जैकोबिन क्लब्स के बारे में लिखना है. आप बताओ कि फ्रांस में बहुत से क्लब्स बने, सबसे पॉपुलर कौन सा हुआ, जैकोबिन. ठीक है. फिर आपने बताना है कि जैकोबिन्स ने सबसे पहले तो ट्यूली राइस पैलेस पे अटैक किया. इन्होंने मोनार्की को अबॉलिश किया. इन्होंने इलेक्शन की डिमांड मांगी. ये कन्वेंशन लेके आए, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए. ठीक है. फिर आपने बताना है कि रॉबस्पियर लीडर बना. फिर आप रॉबस्पियर के बारे में बताओगे सारा कि उसने क्या क्या किया, कैसे लोगों को इक्वालिटी भी दी, स्लेव ट्रेड अबॉलिश किया, बट पनिशमेंट्स भी तो दी साथ साथ. तो उसका पीरियड क्या बन गया, रेन ऑफ टेरर, आतंकवाद का पीरियड. कहाँ भेजता था लोगों को, दोज हु आर अगेंस्ट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बुलेटिन. तो इस वे से उसने कितने लोगों को फ्रांस के बुलेटिन भेजा, वुमेन के राइट्स के फेवर में नहीं था. ओलंपे डी गॉर्जस ने सिर्फ एक अपना पॉलिटिकल क्लब बनाया था, तो रॉबस्पियर सेंड हर टू बुलेटिन. रॉबस्पियर को कोर्ट ने बुलेटिन भेज दिया. उसकी डेथ के साथ फ्रांस में रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया. अब मैंने एक टॉपिक करवाया था, लुइस की जब पावर्स लिमिटेड हुई थी ना, तो लुइस ने सीक्रेट प्लानिंग की थी. किसके साथ, ऑस्ट्रिया एंड रशिया के साथ. नेशनल असेंबली को पता चल गया, तो नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ फ्रांस में. फ्रांस का नेशनल एंथम लिखा गया. फिर आपने बताना है कि कैसे कोर्ट ने लुइस के ऊपर चार्ज ऑफ ट्रेजन लगाया एंड सेंड हिम टू, कोर्ट ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया. Louis was executed on 21st January 1793. Learn this date क्योंकि उसने सीक्रेट प्लानिंग की थी. एंड मैरी आल्सो एग्जीक्यूटेड आफ्टर फ्यू मंथ्स. मैरी को भी एग्जीक्यूट कर दिया आफ्टर फ्यू मंथ्स. तो आपको ये प्लीज़ लर्न करने हैं. जैकोबिन क्लब लर्न करना है. जैकोबिन्स के बारे में यू हैव सो मैनी लाइन्स. रेन ऑफ टेरर भी है पेपर में, कई बार 3 नंबर में रेन ऑफ टेरर ही पूछ लेते होते हैं. Then you have to write only about reign of terror के 1793-94 का पीरियड फ्रेंच हिस्ट्री में रेन ऑफ टेरर है. रॉबस्पियर का पीरियड था, लोगों को बुलेटिन भेजता था जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे. तो उस वे से आप बनाओगे. ठीक है. कैसे भी करके आप इसको बनाओगे अगर ये पूछते हैं तो.
अगर जैकोबिन क्लब पे लाइंस आती हैं देन डिपेंड्स अपॉन योर विश, आप कौन सी लाइंस को लिखना चाहते हो, ठीक है। तो इस वे से आप ये जैकोबिन क्लब के बारे में लिखोगे, ठीक। अब आ गया आपका डायरेक्टरी रूल एंड नेपोलियन। तो वो करने के बाद और एक दो और टॉपिक्स करने के बाद ये लेसन जो है कंप्लीट हो जाएगा।